मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ फॉर व्यूअर्स हु आर लुकिंग एट दिस. The objective of this meeting is to conduct a user experience research study to understand an idea which me and Krishna are working on. We are basically trying to understand whether that problem exists or not, and if yes, that problem exists, then what is it that we can solve? What are the biggest challenges in that problem which we should solve first? What are the bigger pain points, and what are the less important pain points which we should solve next? And if we have a blind spot, we are not able to think in some direction, then we will need your help, Shailendra, to understand that also, if there is some blind spot in our thinking which we have missed. So QME free, the idea is we all queue together for multiple objectives in life in public places. It could be banks, hospital, grocery stores, any public or government service, RTO offices, BSNL office or electricity office or anything else which we do, not just in our country, but there in 200 countries across the world. It could be elections also for putting our votes. So the idea is, do we really need to do that in today's age? When majority or maybe 30 to 40% of most of our jobs have moved online, still there is 60 to 70% of things which needs to be done offline. It could be a driving test for which you need to go. It could be a voting for which you need to go. It could be a banking service for rural places where people need to go to and talk to someone and then get things done for major transactions, or at RTO offices or at registration offices, etc., etc., for land, marriage, etc. Now the idea is, how can we solve that? Why is this a problem right now? It is because of the coronavirus situation, where we have been thinking about this idea for a while, but it never made this kind of urgency with which we are looking at it today, because standing in queues increases the risk and exposure for virus to spread among human beings, and that is why it is becoming a much bigger problem right now, and that is why we are looking at it in priority. So that was the background why we want to do it. So I'll probably start with a few questions. The format of this interview will be me and Krishna will have some questions. We'll go through them, and then after those questions, Shailendra, you can have some ideas, thoughts, opinions on what you think this solution should be, or what you think is the bigger problem in your day-to-day life. So let's start. My first question is, uh, when any technical solution like QME free is implemented, where people can queue rather than standing physically, but via a mobile app, do you think this there will be a adoption amongst all the public or all the audience which you cater to, or all the public which you cater to in your bank branch, or do you think it will be applicable only to a small section or a subsection of that public? Okay, we'll finish the all question first, or the answer would be one by one? We can go one by one. Yeah. Okay, okay. मेरी थिंकिंग में तो एडॉप्शन इजीली हो सकता है, क्योंकि राइट नाउ एज सच कोई मेजर प्रोडक्ट है नहीं इंडस्ट्री में ऐसा जिसमें आप डायरेक्टली कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल कराते हो कस्टमर्स के लिए कि उनको क्यू में रहने के लिए ऑप्शंस है। अभी ऐसा कोई प्रोडक्ट राइट नाउ है नहीं। हर डिफरेंट लेवल पे बैंक्स ने ऑप्शंस दे रखे हैं। जस्ट लाइक आपको सिंगल विंडो ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आया था कुछ दिनों पहले, मतलब जब हम लोग स्कूल में थे 10 इयर्स बैक, वो एक रिवोल्यूशन की तरह आया बैंकों में। बैंक्स में पहले क्या होता था, आपको 10 इयर्स बैक जाएं, जब थोड़ा सा और आपको इस चीज को समझने में आसानी होगी। प्रायर 90s मिड 90s में इंडिया में बैंकिंग कंप्यूटराइजेशन हुई, जो कि बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था। उसके बाद लेट 2010 के आसपास क्या हुआ कि बैंक में सीबीएस कॉन्सेप्ट आया, दैट इज कोर बैंकिंग सोल्यूशन। सीबीएस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप कहीं भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। प्रायर टू दिस आपको अपनी होम ब्रांच में ही करना पड़ता था। ये रिवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी के। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्यूमी फ्री कंसेप्ट में, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रिवोल्यूशन ही कॉन्सेप्ट में आएगा। अभी क्या होता है कि कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले से बैंक्स में आया सिंगल विंडो ऑपरेटर कॉन्सेप्ट। उसके पहले क्या था कि आपको पर्टिकुलर विंडो पे ही जाना पड़ता था पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे आपको अगर कैश जमा करना है
तो आपको कैश काउंटर पे ही जाना पड़ेगा, जो कि डिपॉजिट काउंटर है। अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपको विड्रॉ काउंटर पे जाना है। अगर आपको लेट से लोन पे जाना है तो आप लोन के काउंटर पे जाएंगे। लेट से आप कहते हो आपको कुछ और भी ट्रांजेक्शन करना है, एटीएम लेना है, एनीथिंग, और ये बेसिक सर्विसेज है। और इसके अलावा बैंक में बहुत सर्विसेज है, लेकिन सबके लिए सेपरेट काउंटर थे। लेकिन कुछ बैंक प्राइमरी बने और उसके बाद लगभग सभी बैंकों में सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट आया। ये पोस्ट ऑफिस ने भी अडॉप्ट किया बाद में। तब आपको क्या कॉन्सेप्ट है, आप एक विंडो पे जाएंगे, आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, आपको एक पर्ची मिल जाएगी या टोकन नंबर मिल जाएगा या एनीथिंग, डिपेंडिंग अपॉन द कितनी भीड़ है वहां पे। और उसके बाद आपको सिंगल विंडो पे ही सेम सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो क्यूमी फ्री या ऐसा कोई भी, मैं नाम इसको बार बार नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आता है उसके लिए सबसे पहली चीज ये होगी कि ऐसी फैसिलिटी वहां पे है कि नहीं जहाँ पे सिंगल विंडो सर्विस मिलती है। जैसे आपने आरटीओ का नाम लिया, आरटीओ में शायद अभी ये चीज एडॉप्ट ना हो कि आपको सिंगल विंडो की फैसिलिटी है कि नहीं। आप सबसे पहले आरटीओ में अगर जाते हैं, आपको डीएल बनाना है, डीएल बनवाने के लिए अलग विंडो है। आपका डीएल हो गया, उसके लिए अलग विंडो होगी। सेपरेट सेपरेट सर्विसेज हैं, उनकी सबकी अलग विंडो है। अगर आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लाते हैं तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज होनी चाहिए इजियर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट है कि नहीं। फिलहाल बैंकिंग में मोस्टली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आपको कैश जमा करना है, निकालना है, या अदरवाइज जो भी फैसिलिटीज है, अभी काफी हद तक सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट है। उसके वेरियस रीजंस हैं, लेकिन है। तो जो सबसे बेसिक चीज मुझे समझ में आया बैंकिंग इंडस्ट्री में, पहले वो इम्प्लीमेंट हो सकने के लिए वो फैसिलिटी है कि नहीं। हर जगह नहीं है, लेकिन मोस्टली केसेस में है। तो अभी ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं, बट अगर आता है तो हाँ, ये अडॉप्ट होगा, लोग इसको पसंद करेंगे। क्योंकि अभी आपने एक फनी मीम नहीं देखा होगा, बट ये ग्राउंड रियलिटी है कि काफी ज्यादा धूप थी और इस पैंडेमिक में लोगों को पैसे निकालने थे, तो बैंक को गवर्नमेंट सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने थे। तो उन्होंने बोला कि 1-1 मीटर की दूरी पे सर्कल्स बनाए जाएंगे। आई होप सबने देखा होगा ऐसा। करेक्ट। बट रियलिटी में क्या हुआ कि धूप इतनी ज्यादा है और बारिश हो रही, तो कई जगह पे क्या हुआ, लोगों ने अपने शूज को या चप्पल्स को लाइन में रखा और शेल्टर में खड़े हो गए। मीम की तरह बना था, बट दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। लगभग हर जगह किसी ना किसी लेवल पे फॉलो हुआ। धूप इतनी ज्यादा थी, क्यू 100, 200 या 50 या 20 की भी है, तो एक बैंक की प्रीमाइसेस किसी भी लेवल पे इतनी बड़ी नहीं होती है जो एक साथ विद सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए आप 10 या 15 से ज्यादा को इन 15 भी वेरी बिग नंबर, 10 मैक्सिमम 5 आप इन कैंपस रख सकते हो। आपको मजबूरी में बाहर रखना पड़ा, बट वो मीम की तरह बना। बट वो हाफ रियलिटी थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हो वर्चुअली। सबने चप्पलें रखी, अपनी लाइन बना दी और लोग शेल्टर में खड़े हो गए। तो अगर वहां पे एक ऐसा प्रोडक्ट होता तो कितना अच्छा होता है कि वो अपना नंबर जान जाता। वो बैंक को उससे मतलब ही नहीं था। ग्राउंड रियलिटी आप देखो तो बैंकर को इससे मतलब ही नहीं। बैंक को क्या मतलब था कि जो गेट था उससे एक बंदा आ रहा है, उसको सर्विस रिड्यूस कर रहा चला जा रहा है। आप अगर एक टोटल थर्ड पार्टी जिसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है, वो बैंक के बाहर सर्विस दे रहे थे, उन्होंने क्यू बनवा दी। क्योंकि आप किसी भी बैंक या आरटीओ या किसी में भी जाते हो, आप अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उनके थ्रू जुड़ के आओगे। मैं तो ऐसी रैंडम बात कर रहा हूँ कि आपको उनसे मतलब ही नहीं है, आप खुद एक सर्विस दे रहे हो, तो थर्ड पार्टी तब भी इम्प्लीमेंट हो सकती थी। करेक्ट करेक्ट। तो इस लेवल पे मुझे लगता है कि पब्लिक इसको अडॉप्ट करेगी। सो शैलेंद्र, एक क्वेश्चन इस पे फॉलो अप क्वेश्चन, जैसे सिंगल विंडो का जो कॉन्सेप्ट है उस केस में लाइन कैसे प्रोग्रेस कर रही है, क्यों कैसे प्रोग्रेस कर रही है, उसमें टाइम तो डिसाइड नहीं हो पाता होगा ना, क्योंकि कैश डिपॉजिट करने का, कोई लोन अप्रूवल का, ये तो सारे चीज को प्रोसेस करने का टाइम विंडो पे अलग अलग होता होगा। हाँ, इसको आप टैट का एक टेक्निकल वर्ड होता है, आप लोग तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, टैट, टर्न अराउंड टाइम। ये किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप जब आप सर्विस रिड्यूस कर रहे हैं या किसी और रिड्यूसल के बारे में बता रहे हो, तो आप टैट को जस्टिफाई कर नहीं सकते। क्योंकि आप लेट से आप कैश काउंटर की क्यू पे हैं, आप वहां पे टैट आप इजिली कर सकते हो कि एक आदमी आया, उसने कुछ पैसे निकालने हैं, लेट से उसने बोला कि मुझे 10,000 निकालने हैं, तो 10,000 निकाले या 10 लाख निकाले, वो सर्विस कुछ सेकंड्स की होगी, कुछ मिनट्स की होंगी, और उससे ज्यादा की नहीं। क्योंकि अगर 10 लाख रुपए निकालने हैं तो भी वो 10-10 की नोट नहीं देगा, तो उसको 2 लाख की, वो 2 लाख की 5 पैकेट दे देगा, 10 लाख रुपए हो जाएंगे। इट विल टेक हार्डली 10 सेकंड। अगर वो 1,000 रुपया निकालने आया तो उसको 2 500 की दे देंगे।
बट वहां पे आप टैग जस्टिफाई कर सकते हैं। बट अगर कोई आता है बोलता है कि मेरे एटीएम में ये प्रॉब्लम आ गई, इसको सही कर दीजिए, तो उस मोमेंट उसकी प्रॉब्लम को समझना, उसकी प्रॉब्लम को बैंक वाले या जो भी वहां पे बैठा है उसको डिस्कस करना और उसको एंड में सेटिस्फाई करके भेजना, इस प्रोसेस का टैग आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि कस्टमर, आप बैंकिंग के पर्सपेक्टिव में देखें तो होता क्या है कि आप उतना टेक्निकली कस्टमर नहीं जान रहा होता है। तो जो शुरू के 10-5 दिन जैसे कैश विड्रॉल, कैश जमा करना, ये यूजर फ्रेंडली चीज है। बट अगर एटीएम खराब है तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर अपनी प्रॉब्लम को बताने में ही इतना टाइम लगा देता है कि उसको रिड्यूस करने में टाइम लगता है। तो वहां पे टैग जस्टिफाई नहीं हो सकता है। आप अपना लोन के कस्टमर कभी आ रहा है तो लोन जब पहली बार आएगा तो उसको टाइम ज्यादा देता है बैंक। रीजन बीइंग वो कस्टमर से जुड़ रहा होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा उस मोमेंट पे कि वो स्विच ना कर जाए। बट वही सेकंड टाइम पे आप उसको कम टाइम देते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। थर्ड टाइम तक क्या होता है कि आप क्लियर हो चुके होते हैं कि ये कम टाइम में भी, और थर्ड टाइम तक वो आता है उसकी क्वेरी बहुत लिमिटेड होती है। मे फोर्थ टाइम तक जब आएगा तो खाली उसको पैसे लेके जाना आना है, दैट्स इट। और मे बी आप अगर ऐसी फैसिलिटीज है जो टेक्निक सेवी होते हैं वो वो टाइम आते भी नहीं होंगे। अगर आपने कार लोन लिया है कहीं से लेट से, तो मेरे ख्याल से कार लोन लेने के टाइम पे बैंक गए होंगे उसके बाद कभी आप जाते ही नहीं होंगे, आप ईएमआई आपकी अपने आप देते रहते होंगे। बट जब फर्स्ट टाइम आप बैंक गए होंगे किसी लोन के पर्पज में, तो आपने पहली बार ज्यादा टाइम लिया होगा, आपने समझा होगा कि ये फैसिलिटी मेरे लिए बेटर है कि नहीं है। सेकंड टाइम आप उससे कम टाइम, थर्ड टाइम गए आपने खाली अपना बैंक अमाउंट ले लिया और चले गए। तो इस चीज में टैग नहीं डिसाइड कर सकते, बट जो बेसिक सर्विसेज हैं उसके लिए टैग डिसाइड हो सकता है, दैट इज फॉर श्योर। और डिसाइडेड है, बल्कि नॉट हो सकता है। ठीक है, Neeraj, I think you can move to the next. तो जब हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफ़ी तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं, जिसमें से कई तरीके हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के। वन, हम पहले बैंक के साथ टाई अप करें और उनको समझाएं कि हम ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। नाउ बैंक मे और मे नॉट वांट टू डू इट, बट आपको क्या लगता है कि बैंक की क्या मोटिवेशन होगी इसको करने में? एक मोटिवेशन तो ये हो सकती है कि वो अपने कस्टमर्स को बेटर एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर बैंक ये करना चाहेगा या इसके लिए ज्यादा एफर्ट लेगा। और कस्टमर्स की मोटिवेशन क्लियर है, वो लाइन में नहीं खड़े होना चाहेंगे और उनके लिए ये वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियर है कि उनके लिए एक ईज ऑफ यूज है। बट बैंक्स के लिए आपको क्या लगता है कि क्या वैल्यू प्रोपोजिशन होगी और वो किस तरीके का सपोर्ट इसमें प्रोवाइड करना चाहेंगे अगर ये प्रपोज किया जाता है? इधर जो जिस लेवल पे अभी मैं हूँ बैंक में, मैं अभी स्टार्टिंग लेवल पे हूँ। हम लोग क्या बैंकिंग में जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, तो जितना मैं समझ पाया एज ए बैंक पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एम्प्लॉय, किसी भी सर्विस को लेने के लिए हमारे पास ना के बराबर पावर है। जो डिसीजन है वो पॉलिसी मेकर्स के पास होता है और काफी हद तक करेक्ट है, ये गलत नहीं है। ये मोस्टली गवर्नमेंट बॉडीज का स्ट्रक्चर का पार्ट है। आपको अगर कोई डिसीजन लेना है, लेट्स से मैं एक ब्रांच का मैनेजर हूँ जिसमें 12-13 हजार कस्टमर्स का बेस है और एवरेज डेली 250 कस्टमर आते हैं, दैट इज अ गुड नंबर। स्टिल आप अगर मेरे पास ये सर्विस लेके आते हैं तो मैं कैपेसिटी में ही नहीं हूँ कि मैं सर्विस को ले सकूँ, फाइनेंशियली हूँ। मेरे को पावर है कि आप इतने लेट से आप सर्विस भी, मैं एक रैंडम अमाउंट दे रहा हूँ कि आप सर्विस चार्ज कर रहे हो 10,000 पर मंथ, या एक रैंडम अमाउंट दे रहा हूँ, मेरे को फाइनेंशियल एक्सपेंसेस करने की पावर है। बट मैं उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकूं स्टार्ट, वो पावर मेरे को दी नहीं गई है। अच्छा, वेरियस रीजन से, और मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ कि पावर ना देना बिल्कुल सही है। बट जो आपने बोला कि बैंक इसको लेगा कि नहीं, उससे सबसे पहली बात है कि आपको किस लेवल पे कॉन्टैक्ट करना होगा। करेक्ट। अगर आप किसी लेट्स से एसबीआई में करना चाहते हो, हाँ सॉरी, हाँ, तो शैलिन, मान लो अगर ऐसा रहता कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मान लो किसी के पास पावर रहती, ठीक है, तो उस केस में अपार्ट फ्रॉम यूजर एक्सपीरियंस, मतलब अपने कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के अलावा और क्या मोटिवेशन हो सकता था बैंक का? मतलब बैंक ये भी तो सोच सकता है ये टेक्नोलॉजी बैंक का सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज होगा इस प्रोडक्ट का, वो सबसे बड़ा एडवांटेज बैंक्स के लिए ये है कि आज की डेट में बैंक्स में मतलब किस तरह समझाऊं आपको कि हम एज एन एम्प्लॉय भी हमारे पास ओवर बर्डन है, एक्सट्रीम बर्डन है।
तो अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया आप लोगों को। पिछले कुछ सालों से रूरल बैंकिंग में एक मतलब रिवॉल्यूशन कॉन्सेप्ट आया है, और वो इम्प्लीमेंट मतलब यूपी गवर्नमेंट से हो रहा था फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम से, और उसके बाद इन्होंने काफी चीजें नाम बदली अभी बीजेपी गवर्नमेंट में, लेकिन वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बैंक मित्र या बिजनेस करस्पॉन्डेंट का। यदि आप लोग अभी उतना अवेयर ना हो, क्योंकि रूरल एरिया में बहुत ही ज्यादा होता है, उस रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में ये इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। उसमें क्या होता है कि जो बैंक की बेसिक फैसिलिटी है वो आपकी रेंडर की जाती है। एक क्या कह सकते हैं आप उसको, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। जैसे एक अलग सा बंदा है, उसको बैंक ने हायर किया है कमीशन बेसिस पे, पूरा थर्ड पार्टी है, उसके लैपटॉप में एक्सेस दे रखा है बैंक की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। ओके। तो बैंक की जो अच्छी खासी पब्लिक है वो वहां भी ट्रांजेक्शन करती है, वो अपने घर पे बना सकता है, घर के आसपास बना सकता है, तो उधर छोटा ऑफिस लेके रख सकता है। आपने कंज्यूमर सीएससी का नाम सुना होगा, कंज्यूमर सर्विस सेंटर आई गेस बोलते हैं उसको, सीएससी, वहां पे जन सेवा केंद्र हिंदी में सुना होगा। तो ये भी उसका पार्ट है, तो अगर वहां पे है तो वहां पे सर्विस हो सकती है। तो जो मैंने बोला, आपकी बात हमारी उस क्वेश्चन पे आई थी कि उससे बैंक को बेनिफिट क्या हो सकते हैं ना, सबसे बड़ा बेनिफिट ये यही होगा कि हमारे पास दूसरे कामों के लिए समय रहेगा, या कह सकते हैं बेटर मैनेजमेंट रहेगा, और ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा किसी भी लेवल पे। तो आपको बेटर बिजनेस मिलेगा ही मिलेगा कस्टमर से। एंड ऑफ द डे किसी भी सर्विस इंडस्ट्री का जो मोटिव रहता है दैट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर, क्योंकि उसी की बेसिस पे ही आपके रिजल्ट आते हैं। तो बैंक भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और बड़े लेवल पे जूझ रहे हैं। बड़ी लार्ज ब्रांचेस में क्या होता है, ये कस्टमर का फुटफॉल कम होता है, बट नॉर्मल कोर्स में फुटफॉल बहुत ज्यादा रहता है। और आप अगर नोटिस करोगे, जब भी कोई गवर्नमेंट की स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है, उस बीच में फुटफॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस लेवल पे अभी बैंक्स को वास्तव में जरूरत है एक ऐसे प्रोडक्ट की। मे बी हम लोग अभी बिल्कुल वोग आइडिया की बात कर रहे हैं, तो उसको स्ट्रक्चर ना कर पा रहे, तो हम समझा ना पा रहे हो। बट हाँ, एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है, और टाइम टू टाइम बैंक या कोई भी इंडस्ट्रीज उसको खोजती है अपने लेवल पे। जैसे हम लोग हैं अपने यहाँ, मैं जस्ट फॉर माई एग्जाम्पल, हम लोग बैंक में क्या कर रखा है इस कोरोना के केस में, हम लोगों की ब्रांच में जो इनसाइड कैंपस पब्लिक के जगह है, जो हमारी ब्रांच के अंदर, वो हार्डली एक साथ में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए 3 कस्टमर रह सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि एक गार्ड रहता है अंदर। आप सोचिए ना कि केवल 3 लोग रह सकते हैं। अगर आपकी वाइफ के साथ आप अकाउंट किसी भी ऑपरेशन के लिए जाते हैं अपनी ब्रांच में, तो नॉर्मल कोर्स में हम लोग मानते हैं कि एक कस्टमर के साथ एक फेलो जाता ही जाता है। तो आप सोचिए, एक साथ आप 1.5 कस्टमर डील कर सकते हैं मैक्सिमम, तो बाहर हमें क्यों बनानी पड़ती है। तो हमारा एक बंदा या एक आदमी उस चीज को मैनेज करने रहती है। हमको सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म भी फॉलो करनी है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। अगर हमारे यहाँ बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स नहीं फॉलो हो रहे हैं, तो बैंक मैनेजर को उन सब पे एफआईआर की जाएंगी, जो कि सही भी है। ओके। तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा जरूरत है इस चीज की। तो बैंक इसको वेलकम करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। और अदर इंडस्ट्रीज भी वेलकम करेगी, बट स्ट्रक्चर्ड वे में रहेगी। क्योंकि ये आप जब किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे, तो जैसा मैंने कहा कि हम लोग के लिए कैपेसिटी पे इसकी पावर नहीं होती है काफी हद तक। तो आपने जब भी बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट करना होगा, तो बेटर स्ट्रक्चर के साथ आप जाएंगे। तो इसकी जरूरत मतलब इसका नीड है, दैट इज फॉर श्योर। So, when you say policy manager, which position are you referring to? Like which position and above will be the decision maker? मिनिमम मिनिमम किसी भी मतलब अगर आप किसी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो तो हेड ऑफिस लेवल पे ही होना है। जैसे लेट्स से आप इंडियन बैंक की बात करेंगे, इंडियन बैंक में करंटली 45,000 एम्प्लॉई हैं, जिसका हेड ऑफिस चेन्नई में है। तो अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन होना है, तो लखनऊ की जनरल मैनेजर की भी पावर नहीं है अगर वो सॉफ्टवेयर लेवल का इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज फॉर श्योर। तो क्या डेजिग्नेशन होगी उनकी जो चेन्नई में बैठते होंगे आपके हेड ऑफिस में? दैट इज सीएमडी। CMD. Okay. Got it. मतलब सीएमडी की बात नहीं है, जो डायरेक्टर्स बोर्ड की मीटिंग होती है उनकी बात कर रहा हूँ, कि एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि बोर्ड में कुछ पास होगा तभी आएगा, मेरा ये कहने का मतलब। Got it. और लेकिन आप इस तरह सोचिए कि थर्ड पार्टी के लेवल पे आप ला सकते हो, सोचिए कितना अच्छा है। अगर आप मुझे ऑप्शन दे दो कि मुझे बैंक के बाहर की भीड़ मैनेज करानी है, सब कुछ मैं कराऊंगा, मेरी कैपेसिटी पावर भी है, मैं कहीं से पे भी कर दूंगा, बट बैंक का नाम ही उसमें आएगा। लेट्स से मेरे बाहर बैंक के 100 लोग की भीड़ है,
आप कृष्णा आके कहते हैं कि शैलेंद्र आपके पास एक ऑप्शन इन 100 लोग को मैनेज कराने के लिए मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें इलाहाबाद बैंक या इंडियन बैंक या एसबीआई किसी का नाम नहीं आ रहा है, आप सर्विस दे रहे हो बैंक के बाहर उनको क्यू में करने के लिए फॉर शॉर्टर पीरियड टाइम, जितने दिन ये चल रहा है। कोई मुझे मना नहीं करेगा, मुझे कोई अथॉरिटी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बैंक के बाहर की भीड़ को मैनेज करा रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट। आप पॉइंट समझिएगा कि बैंक्स में, सॉरी, हाँ बेसिकली बैंक या किसी भी इंडस्ट्री में क्या होता है, किसी जस्ट मोमेंट, किसी भी इंडस्ट्री में क्या होता है, हम लोग क्या आपको कई जगह ऐसे होते हैं कि वर्चुअल पावर दी जाती है आपको, उस बिना नाम में लाए हुआ आप उसको यूज कर सकते हैं। लेट्स से मुझे कैसे बताऊं कि मुझे अगर अपने बाहर में कुछ चेंज सफाई करवानी है लेट्स से, तो कई बार क्या होता है कि मुझे दिखाना नहीं कि सफाई करा रहा हूँ, कुछ और बता दूंगा कि सफाई कर रहा है, लेकिन वो पावर दी गई है आपको कराने की, वो द वे अराउंड आप सिस्टम में दिखा सकते हैं। तो अगर आप ऐसी सर्विस देते हो कि बाहर के मैं लोगों को 20 लोग को मैनेज कर रहा हूँ अनऑफिशियली, जैसे बल्क एसएमएस की फैसिलिटीज आती थी, आज की डेट में तो बल्क एसएमएस खत्म मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग छोटे लेवल की सर्विस को यूज करते थे। एग्जाम्पल था, मतलब आप अगर आप थर्ड पार्टी भी यदि मतलब क्या बोलते हैं पायलट बेसिस पे ट्राई करेंगे तो वो फैसिलिटी ऑफिशियल ना हो कि अनऑफिशियल लेवल पे कर सकते हैं, बट लार्जर प्रोस्पेक्ट में जाने के लिए आपको पॉलिसी मेकर्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा एज पर माय नॉलेज। करेक्ट करेक्ट, साउंड्स गुड। क्योंकि इस केस में अगर बैंक अडॉप्ट करता है उसको तो वो सब जगह मैंडेट भी करेगा और उस केस में वो सारा अप्रूवल जरूरी है, बट पीओसी फेज में जब ऐसा कुछ करना है तो उस केस में अगर जो ब्रांच को मैनेज कर रहा है वो एज ए थर्ड पार्टी अलाउ कर सकता है कि भाई इसको मैनेज करो, ठीक है, यूजिंग दिस, और उसका अगर बेनिफिट होता है तो मे बी आगे आगे चल के वो एक्सटेंड हो सकता है। गुड। तो इसका आप लोगों को कोई बजट भी दिया जाता है ब्रांच को कि आपके जो ब्रांच लेवल के मैंने काम है क्या उसका बोला अलग कि बजट आप होता है? मतलब बजट को आप कह रहा हूँ कि आपको कई कैपेसिटी में कई पावर्स दी जाती हैं। अच्छा अच्छा। और मेरा इंडिविजुअल डिसीजन मानना ये है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गुड फेथ में सॉरी हाँ गुड, बोलो बोलो। मेरा इंडिविजुअली ऐसा मानना है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के गुड फेथ में कुछ एक्सपेंसेस भी करते हैं और जब तक उसमें आपका कुछ गलत इंटेंशन नहीं है तो कभी कोई इशू नहीं होता है। और बजट जो होता है वो आपके एक्सपेंसेस पे जो बजट होता है बैंक टू बैंक पावर टू पावर वेरी करते हैं और टाइम टू टाइम उसको बढ़ाया घटाया भी जाता है, बट वो हो सकता है अगर इंटेंशन गुड है तो बजट किसी भी इंडस्ट्री के लिए आज की डेट में गॉट इट इंडिया गॉट में इट। तो अगर सेकेंडरी हमें होता है। नहीं नहीं करेक्ट है करेक्ट है। तो अगर हमें एक पायलट प्रूव करना हो फॉर सम टाइम पीरियड कि ये चीज़ काम करती है बैंक्स के लिए, तो हम आपकी ब्रांच के साथ टाई अप कर सकते हैं, आपको पहले सोल्यूशन दिखा सकते हैं कि वो क्या है, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको अप्रूव कर सकते हैं, अपने ब्रांच में आप हाँ, डिस्कस कर यही सकते मैं कह रहा था कि आप हैं, आप पायलट कुछ बेसिस टाइम पे फ्री यूज कर अनऑफिशियली सकते कर हैं। सकते हैं। ठीक है हाँ, ये भी है ठीक है कि क्योंकि आप कुछ दिक्कत क्या टाइम है एक दो कि हफ्ता फ्री यूज इसमें करके जो देखें। यूजर, हाँ, जो यूजर्स हैं आपको उन्हें यूज कराना ना कि बैंक एम्प्लॉय को, आप राइट कॉन्सेप्ट समझिएगा। करेक्ट राइट करेक्ट। हाँ, राइट जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो हमारे बैंक के कस्टमर हैं। समझ गया। मैं एज एन इंडियन बैंक एम्प्लॉय कभी भी नहीं कहता था कि सॉरी कॉल आ गई थी, मैं एज ए बैंक एम्प्लॉय कभी नहीं कह सकता और इन कैपेसिटी ऑफ द बैंक मैनेजर ऑफ इंडियन बैंक ये नहीं कह सकता हूँ कि प्लीज यूज MLAI कम्युनिटी का ये प्रोडक्ट है क्यों फ्री। मैं ऑथराइज नहीं कहने के लिए, मैं कृष्णा के फ्रेंड नीरज के फ्रेंड की तरह मैं कभी भी कह सकता हूँ, बस ऑफिशियली मैं अलाउड ही नहीं हूँ कहने के लिए। करेक्ट। तो ये छोटे छोटे कंसेंट आएंगे जो मे बी आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये शायद इस पर्टिकुलर केस में नहीं, हर एक केस में ऐसा होता है कि आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो चीजें सामने आती हैं। करेक्ट करेक्ट। राइट राइट राइट। बट आपको ये डिसाइड करना है दो चीजों में से कि आपने किसे चूज करना है, आपने कस्टमर चूज करने हैं कि आपने बैंक चूज करना है। आप बैंक से अगर कहते हो कि आप क्यूबी फ्री कस्टमर्स को यूज कराइए तो आपने पॉलिसी मेकर से ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर आप ऐसा कुछ सेटअप करते हैं कि आप कस्टमर्स को बाहर सर्विस दे रहे हैं तो आपने बैंक से उतना मतलब नहीं होगा, मे बी कुछ हो बट उस लेवल पे नहीं होगा और जो कि इजियर पड़ेगा। राइट। तो अल्टीमेटली इंस्टॉल तो कस्टमर ही करेंगे। हाँ, अगर मान लो अगर ये सर्विस एज ए थर्ड पार्टी क्लाइंट्स को अवेलेबल रहती, नॉट फ्रॉम बैंक साइड, एज ए थर्ड पार्टी अवेलेबल है, और मान लो मुझे आपकी बैंक में लाइन लगाना है, ठीक है, तो मैंने क्या करा कि मैं इस ऐप पे गया, फॉर एग्जांपल ऐप मेरे पास अवेलेबल है और मैंने जा करके आपकी ब्रांच चूज करके आपकी क्यू में लगना चाहता हूँ,
ठीक है, लेकिन देखा जाए ट्रैफिक क्या होगा, अब अगर मान लो कोई बैंक सिंगल विंडो फॉलो कर रहा है तो आइडियली एक ही लाइन होगी और उस लाइन में मैं लग सकता हूँ वर्चुअली, करेक्ट। लेकिन वहां पे ऑफलाइन ट्रैफिक भी होगा, मतलब कुछ लोग ऑफलाइन जो वहां जाके भी लाइन में लग रहे होंगे। तो अभी आपको क्या लगता है कि एडॉप्शन वाइज जो जिस टाइप की ऑडियंस से आप इंगेज करते हो, ठीक है, उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनता है? फॉर एग्जांपल अगर आपको ये फैसिलिटी दी जाए कि नहीं यार आप वर्चुअली लाइन में लग सकते हो कंपेयर टू कि आपको बैंक में जाके लाइन में लगना है, तो उसमें कुछ रेशियो आप कुछ आपके माइंड में आ सकता है अभी, कुछ ऐसी चीज जिससे कि हाँ भाई अभी एज एन इंडिविजुअल और एज एन इंडिविजुअल और एज ए बैंक कस्टमर में अगर ट्रीट अपने आप को सोचूं तो मुझे लगता है कि एक ऐसी भीड़ की ब्रांच में तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल मेरे को लेट्स से हाँ एक अब कई चीजें आती हैं ऑप्शन, जैसे आप कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर लेट्स से 20,000 का विड्रॉल करना है, बहुत किसी चीजें, और आप एक टेक सेवी हैं और आप यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी टू बी वेरी फ्रैंक। आप एटीएम जाएंगे ऐसा आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी क्यू में लगने की। अगर आपको 20,000 विड्रॉल करने हैं आप 3-4 मिनट एटीएम की वेट कर सकते हैं, उस एटीएम में जगह निकाल दूसरे एटीएम चले जाएंगे, प्लेंटी ऑफ एटीएम्स हैं, राइट। अगर आप बैंगलोर रहते हैं या चेन्नई में रहते हैं, मुंबई या दिल्ली या छोटे शहर लखनऊ में रहते हैं, आपको 20,000 का विड्रॉल करना है, तो आई डोंट थिंक कि आपको उस क्यू की अभी ऐसा जरूरत होगी। आप जाके निकाल सकते हैं। आपको कभी मतलब 20,000 रुपीज निकालने के लिए आई डोंट थिंक कि आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी होगी। am I right? ठीक है, करेक्ट। और मतलब आप खुद अपने आप को एज ए कंज्यूमर सोचो। करेक्ट, नहीं सही कह रहे हो। बट अब करंट सिनेरियो में आ जाते हैं, अभी करंट सिनेरियो में आ जाते हैं। अभी 20,000 निकालना है, आपको जरूरत है अभी 20,000 निकालना है, तो क्योंकि आप घबरा रहे हो बैंक में या एटीएम की क्यू में लगने में। तो आप जब कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, डोंट थिंक कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, बट आप कोई प्रोडक्ट कभी भी आप लाते हैं किसी में, मैं अगर सोचूं कि मैं कोई प्रोडक्ट ला रहा हूँ तो मैं प्रेजेंट सिनेरियो के लिए नहीं ला रहा, ये ऐसा प्रोडक्ट है, मैं एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ला रहा हूँ, तो जो मैं सोचूंगा कि क्यू में सिर्फ ऐसा ऑप्शन दे जो हमेशा रहे, ना कोविड के केस में रहे। अभी आप एटीएम में लाने से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपको क्यू में नहीं लगने का मतलब, आपको क्यू का डर क्यों है? क्योंकि आपको इस चीज से इन्फेक्ट होता है, राइट। अदरवाइज क्यू में कोई डर है, 10 मिनट क्यू में लग सकते हैं। तो क्या उस लेवल पे उस सर्विस की जरूरत है? हाँ, अब आते हैं दूसरे प्रोस्पेक्ट में कि बैंक में जो भीड़ है वहां पे हाँ बहुत ज्यादा जरूरत है उन लोगों के लिए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे यहाँ करीब हर महीने में जब सैलरी बढ़ती है एम्प्लॉयज की, उस समय एक दिन में करीब 400 लोग पेमेंट लेने आते हैं सैलरी का। उस दिन इस प्रोडक्ट की मतलब रेवोल्यूशन की तरह आएगा ये प्रोडक्ट। वो अपने ऐप में डिसाइड कर लिया उन्होंने। जैसे मैं कितना डिसाइड हम लोग बात कर रहे थे कि एमआई सर्विस सेंटर, मैं नाम ले रहा हूँ, एमआई सर्विस सेंटर इस चीज को अडॉप्ट कर चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने सोचा कि मैं एमआई में उसको रिपेयर कराने के लिए भेजूं, तो मैंने किसी से कांटेक्ट किया कि एमआई का सर्विस सेंटर कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि एमआई सर्विस सेंटर कहीं है सिटी में, आपको ऑनलाइन उसमें अपना पहले जाके आपको टाइम स्लॉट बुक करना होगा। मैंने तो अच्छी चीज है, चलो अच्छी चीज है, ट्राई करते हैं। उनकी वेबसाइट पे गया, अपना मोबाइल नंबर डाला, मॉडल डाला, ओटीपी आया, फिर जब टाइम स्लॉट की बताई मुझे इतना अच्छा लगा उसमें। अगर मैंने टाइम स्लॉट चूज किया कि लेट्स से मैं वेडनेसडे को 3 बजे से 4 बजे के बीच में करना चाहता हूँ, तो उसने खुद अवेलेबिलिटी चेक कर ली कि हाँ एमआई सर्विस सेंटर नंबर 1 पे 3 से 4 में अवेलेबल है। लेकिन मैंने सोचा मेरा घर के पास एमआई नंबर 3 वाला है, तो मैं देखा कि 6 से 7 वाले में एमआई सर्विस सेंटर 3 वाला खाली है, क्योंकि मुझे ऑफिस से लौटना है उस टाइम पे। तो जब मैंने 6 से 7 का स्लॉट बुक कर दिया वेडनेसडे का, तो मेरे के बाद वेडनेसडे मॉर्निंग में कॉल आ गई कि सर आपका 6 से 7 का बुकिंग है, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। आप सोचिए पहली बार कि क्यूबी फ्री में ऐसा नहीं कि आप वेरी सेम डे की बुकिंग लोगे, आप बुकिंग 6 दिन बाद की भी लोगे, तो आपको 6 दिन बाद 6 से 7 बजे आपका वो बंदा आ रहा है कि नहीं, उसकी प्रायर कंफर्मेशन भी ले रहे हो कि आप उस क्यू को और कितना रिड्यूस कर सकते हो। अगर लेट से मैंने आज है 10th 11th है, आज 11th है और मैं 17 की बुकिंग ले रहा हूँ एज ए कंज्यूमर, तो 16 तारीख की 17 तारीख की मॉर्निंग में क्यूमी फ्री अगर कंफर्म कर लेता है कि 17 को कौन कौन आ रहा है शाम को,
तो मे बी जिसने 10 को बुकिंग की 70 तक उसमें से 50% लोग कैंसिल कर चुके होते हैं। तो अगर आप उस बुकिंग में से 50% को हटा देंगे तो आपका डेटा और अच्छा हो गया, राइट? करेक्ट करेक्ट। मैं भी समझा ना पा रहा हूँ मोनू। मेक सेंस, मेरे को समझ में आया पूरा। हाँ, तो आप समझो कि उस चीज को जब 17 तारीख को आप आधे लोगों को कम कर देंगे तो आपका डेटा और अच्छा हो गया। जो उस समय क्यू में 92 पे था, अभी वो 42 पे आ गया। उसको पता है कि हाँ मैं 92 पे था, मैं 42 पे आ गया, मेरे को मे बी 6:30 का स्लॉट में 6:15 पे स्लॉट आ जाए मेरा। करेक्ट। नहीं चलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरी साइड से, क्योंकि 2 मिनट की बचे हुए इसमें, ठीक है? तो मुझे पूछना था कि बाई चांस अगर मान लो लाइन अगर मैं रख रहा हूँ, ठीक है, और उस क्यू को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन भी ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, और अगर मुझे बैंक से, मान लो हमने सोल्यूशन अभी फ्री में है आपके पास, आपने बोला यार क्यू मैनेज करो, लेकिन मेरे को क्यू की ऑथेंटिसिटी भी चाहिए कि एक्चुअली जो एंड यूजर जो घर पे बैठा हुआ है वो अगर किसी क्यू में लग रहा है तो आइडियली वो राइट क्यू में लगे, मतलब वो एक ऑथेंटिक क्यू रहे, ठीक है? उसके लिए मान लो ब्रांच मैनेजर की क्यू स्टार्ट करे, एग्जांपल लेके ब्रांच मैनेजर से ही हम शैलेंद्र वर्मा से मिले, शैलेंद्र ने बोला कि ठीक है मैं अपने ब्रांच का एक क्यू क्रिएट करता हूँ। मान लो उसकी एक आइडेंटिटी है उस क्यू की, और उसको सारे लोग जानते हैं वहां पे, तो लोगों ने उस क्यू में लग गए। लेकिन क्या होगा, कुछ लोग ऑफलाइन भी आकर के ऐड होंगे, जैसे जो लोग इस ऐप को नहीं यूज कर रहे हैं, किसी और तरीके से आ रहे हैं, ठीक है? तो वहां पे एक ऐसा हमें सपोर्ट चाहिए होगा, या आप कुछ और बता सकते हो, कुछ और आइडिया कि जिससे व्हाट विल बी द राइट यूजर एक्सपीरियंस, कि जिसमें जो ऑफलाइन बंदा आ रहा है उसको भी हमें उसी क्यू में मर्ज करना है, ठीक है? तो वो ऑपरेशन अभी आगे मशीन लर्निंग यूज करके भी ऐड कराया सकता है बंदे को, लेकिन अभी मान लो अगर हम वो ऑपरेशन अगर मैनुअल रखें एज ए फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसमें जो बंदा गार्ड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उस गार्ड के पास एक एक्सेस है जिसमें जो लोग वर्चुअली आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी लाइन में है, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑफलाइन आता है तो जैसे टोकन मिलता था ना, ठीक है, जैसे टोकन बैंक में टोकन वाली जगह होती है, मान लो एक जगह है जहां पे तुमने जाकर के टैप करा, ठीक है, और अगर कोई टेक्निकली इक्विप्ड है और वो टैप कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, और मान लो अगर वो नहीं है तो मान लो एक बंदे के पास बैंक में एक्सेस सपोर्ट दे दिया, ठीक है। तो अगर इस टाइप का और मतलब ये काइंड ऑफ ए राइट फ्लो रहेगा, या कोई और यूज केस बेटर रहेगा बैंक के कॉन्टेक्स्ट में? नीरज आप भी पूछ सकते हो अगर आपको। हाँ थोड़ा सा इम्प्लीमेंट, हाँ बताओ। मतलब थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने में स्टार्टिंग में रहेगा कि ऑफलाइन ट्रैफिक और मतलब ऑनलाइन ट्रैफिक को कैसे आप सिंक करते हैं। मतलब आई गेस जो आपका क्वेश्चन मेन है कि सिंकिंग कैसे करना चाहते हो ऑफलाइन कस्टमर मर्ज की करेंगे और ऑनलाइन कस्टमर की, जो कस्टमर ऑफ वहाँ पे ऑन। हाँ, तो उसमें मे भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में, कुछ कई बार क्या होता है कि बैंकिंग में आप पर्सनली भी अटैच होते हो कस्टमर से। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है कि हम लोग ऑन डे टू डे बेसिस हम लोग क्यूज को तोड़ते हैं। मतलब अगर आप, तो हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे थे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्यू को कैसे सिंक करना है। तो मैंने जब एक बात बोली थी बीच में कि हम लोग डे टू डे बेसिस पे, जैसे हमारे यहाँ एक साथ में लेट्स सपोज कि 10 लोगों की क्यू लगी है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो 10वें पे है बंदा उसको हम पहली प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि 9 लोग जो हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो 10वां बंदा है हमारे लिए। करेक्ट। तो हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड जाके क्यों तोड़ते हैं, और ये प्रैक्टिस में है। ऐसा नहीं है कि जो 10th नंबर पे आया है उसको हम प्राइम फैसिलिटी नहीं देंगे। लेट्स से वो हमारा, मेरी ब्रांच है लेट्स से 60 करोड़ की, फॉर एग्जांपल मैंने एक रैंडम अमाउंट बोला जिसमें 30 करोड़ का एडवांस है और 30 करोड़ का डिपॉजिट है। ये बैंक के पैरामीटर्स होते हैं कि कितनी बड़ी कितनी छोटी ब्रांच है। लेट्स से हमारी 60 करोड़ की ब्रांच है, जो कि एवरेज केस में आइडियल होती है छोटी ब्रांच, स्मॉल के बाद मीडियम लेवल की ब्रांच में। अब 60 करोड़ की ब्रांच में 30 करोड़ का एडवांस है, 30 करोड़ का डिपॉजिट है। अब 30 करोड़ के एडवांस में लेट से कोई कस्टमर ऐसा है जिसका 5 करोड़ का अकेले का एडवांस है। वर्चुअली वो 60 करोड़ के बिजनेस में 5 करोड़ रखा है, मेरे ख्याल से 12% हुआ, राइट? करेक्ट। उस ब्रांच के बिजनेस का 12% अकेला वो कस्टमर है। वो 10वें पे है चाहे 11वें पे, आपको पहली प्रायोरिटी देनी के लिए देनी है आपको। करेक्ट। तो ऐसे जैसे मेरी यहाँ एक इंटरनेशनल ब्रांच है जिसका बिजनेस 500 करोड़ का था कुछ दिनों पहले, इसमें सिंगल पार्टी का बिजनेस 130 करोड़ था उसमें। अब आपका सारा क्यूमी3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म, क्योंकि एट दैट मोमेंट वो बंदा उसके लिए सुप्रीम हो गया। करेक्ट। तो आप
आप जो क्यू में फ्री हैं वो कभी भी मतलब ऐसी कोई भी सर्विस नॉट क्यू में फ्री वो जनरल पब्लिक के लिए होगी, स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए नहीं होगी। प्रायोरिटी क्यूज का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी। हाँ तो सिंकिंग जो है वो मैनेज हो सकती है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग भी इसको डे टू डे में तोड़ते हैं। जो अभी बात हुई कि एक बैंक का एम्प्लॉय इसको दे सकता है कि नहीं, हाँ अभी अगर हम लोग थर्ड पार्टी एकदम पायलट से बात करें कि इंडिविजुअली ब्रांच से हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं टेस्टिंग के लिए, तो एज ए ब्रांच हेड मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई फैसिलिटी मिल रही है, मैं बाकी 50 लोगों को सर्विस दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इनिशिएट कर सकते हैं। सिंकिंग भी हो सकती है ऑफलाइन ऑनलाइन की, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, इजीली हो सकती है। हाँ, जो भी एक बात हम कर रहे थे कि आप टैग की बात हो रही थी कि टैग कैसे देखते हैं, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरे दिमाग में भी आई कि हाँ, अगर आपने लेट से मैं कस्टमर हूँ जिसने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है 2 से ढाई लंच होता है बैंक का, आपने कस्टमर ने स्लॉट बुक किया कि मेरे को 1:15 का स्लॉट मिल गया, मुझे को जाके अपना एटीएम कार्ड रिप्लेस कराना है, ब्लॉक हो गया है, एनीथिंग कुछ भी हो गया, ब्लैक हो गया, खो गया, उसके हिसाब से तो मैंने 10 मिनट का काम होगा उसमें, उसने बुकिंग की और वो 5 पहले आ भी गया वहां पे, बट नेटवर्क कनेक्टिविटी चली गई, और कनेक्टिविटी 20 मिनट तक नहीं आई, और 20 मिनट बाद अगला बंदा आ गया या उस पे 2 लोग और आ चुके हैं, इनका काम भी नहीं हुआ, तो उनकी क्यों पीछे चलती चली गई। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आ सकती हैं, मैं मतलब बता रहा हूँ कि जो हम लोग को फेस करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट करने में, तो आपको इसका भी सोल्यूशन देना पड़ेगा कि उसको रियल टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए कि भैया अभी आपको क्यों में वेट करना पड़ेगा ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी या ड्यू टू एनीथिंग एनी रीजन। चलेगा। नीरज आप देखो कुछ। सो मेरे यही मेजर क्वेश्चंस थे, बाकी एक्चुअली हमें शायद अभी सही समय नहीं है। हमारा जब डिज़ाइन थोड़ा फाइनल हो जाएगा, मेरे पास एक डिज़ाइन है अभी आपका, बट मैं एक बार आपके साथ गो थ्रू करना चाहूँगा जब हमारे पास डिज़ाइन हो जाए। अगर अभी शायद 15 मिनट का काम है, अगर अभी नहीं है तो बाद में बात कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एक काम करेंगे कृष्णा, बिफोर यू स्टार्ट द फाइनल कोडिंग, जो फाइनल डिजाइन है ना वो अपना जो कोर यूजर सेट है उनसे एक बार रन थ्रू करा लेंगे, तो शैलेंद्र के साथ भी एक बार रन थ्रू करा लेंगे कि जैसे अभी काफी इंपॉर्टेंट चीजें पता चली कि जैसे हमें एक फीचर रखना चाहिए एक कस्टमर को मूव अप और मूव डाउन करने के लिए जो कि बैंक एम्प्लॉयज कर सके। दूसरा है कि अगर कनेक्टिविटी इशू हो तो दे शुड बी एबल टू पॉज द क्यू फॉर सम टाइम सो दैट पीपल विल नो कि देयर इज सम आउटेज, एंड एक अंदाजे से कुछ टाइम बता दें कि 1 घंटा 2 घंटा लगेगा तो हम उतनी देर के लिए कस्टमर को नोटिफाई कर देंगे। तो ये 2 फीचर हमें पता चले जो हमें रखने चाहिए, अभी तक नहीं आइडिया था इसका। ऐसे ही चीजें और समझ में आएंगी। एक अच्छी बात पता लगी कि ये सिंगल विंडो वाला कॉन्सेप्ट अगर फॉलो हो रहा है बैंक्स में, ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली गुड फॉर अस, क्योंकि अगर मल्टीपल अगर बैंक्स में रहती तो फिर उसको मैनेज करने के लिए भी एज अ डिजाइन वाइज वी नीड टू डू लॉट, राइट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली, मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी शायद गांव में ही है अभी, उनका पूरा सेटअप, तो उनको भी जैसे अभी बैंक जाना है तो हमें काफी टेंशन हो रही है सोचने में कि कितनी भीड़ होगी, कितना काम होगा, जाना होगा आना होगा। तो अभी मुझे समझ में आया कि डेली के 200-250 लोग अराउंड जा रहे हैं अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी, तो इट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बिजनेस नीड है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड, गाँवों में तो सबसे ज्यादा जरूरी है इस चीज की। तो दो यही मेरी कुछ दिनों पहले कृष्णा से बात हुई थी कि सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मतलब एक मैंने ये भी कहा था कि आप अगर रूरल ऑडियंस को लेके आप कोई चीज डिजाइन करते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं, जो शायद आप लोग अभी उस चीज को इसलिए ना फील कर पाओ कि आप वहां पे हो नहीं, और मैं उससे ज्यादा रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैं वहीं पे हूँ। तो जैसे आप बाइलिंगुअल की बात है, बाइलिंगुअल तो मस्त हो जाएगा अगर आप रूरल में जा रहे हैं, Yes. तो आपको हिंदी लैंग्वेज में लानी ही पड़ेगी, या आप अगर बैंगलोर में हैं तो वहाँ की लैंग्वेज होगी, या आप कहीं और है वहाँ की लैंग्वेज, मतलब एक मस्ट हैव है, और इसलिए क्योंकि वो आदमी रिलेट बहुत अच्छे से करता है। और सेकेंडरी अगर आप कलर कोडिंग देते हैं, कलर कोडिंग खैर वर्ड सही नहीं है, मतलब आप कलर का इम्प्लीमेंट करते हैं आप अपने ऐप में, मतलब उसको पता है कि ग्रीन से मेरा ऑन हो जाएगा, रेड से ऑफ हो जाएगा, अब ग्रीन अप एरो बना है मतलब मेरी क्यू अप हो गई, रेड डाउन एरो बना है कि मैं डाउन हो गई, तो मतलब वो बंदा ऐप को नहीं चला पा रहा अच्छे से, बट वो रिलेट कर ले रहा है। जैसे मेरी माँ है वो मतलब जब
उन्होंने शुरू किया था आज से 6-7 साल पहले मोबाइल में यूज करना स्मार्टफोन को, तो स्टार्टिंग में वो मतलब ये चीजें जैसे आज भी है, वो मतलब शायद वो गूगल को गॉगल बोलती है, जो मतलब हंसते हुए, वो इतना अच्छे से नहीं बोल पाती हैं, बट उनको टाइप सर्च करना आ गया, और आज की डेट में वो स्पीकर पे सर्च करके बोल लेती हैं, क्योंकि हिंदी सर्च का ऑप्शन है गूगल में। अब उन्हें कुछ सर्च करना है तो वो बोल देती हैं, सर्च हो जाता है। तो एक छोटी सी चीज है कि मतलब अगर आप या सिंबल वर्ड यूज करना ज्यादा करेक्ट रहेगा। आप सिंबल्स को यूज करके अगर आप ऐप में दे सकते हो, तो रूरल ऑडियंस बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिलेट करेगी इस चीज को। और जैसे मेरी कुछ दिनों पहले कृष्णा से बात हुई थी कि आज, और हम लोग तो सोचते हैं कि गांव में ये चीज नहीं अवेलेबल है, तो ये मिथ है हमारे लिए, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट खुद कह रही है कि अगर आपके गांव की रोड टूटी है, एक ऐप दे रखा है, और उस ऐप पे आप गांव की रोड की फोटो भेजिए और जाएगी। दैट मीन्स गवर्नमेंट भी मान रही है कि सबके पास एक्सेस है, एक्सेस है, और हम माने चाहे ना माने, है एक्सेस, काफी हद तक एक्सेस है लोगों के पास। Correct. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर उनको बनाएंगे उनके लिए तो है अवेलेबल, हमारे पास टारगेट ऑडियंस की चिंता नहीं है। करेक्ट करेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज समझ में आया। एक और चीज समझ में आई कृष्णा, कि हमें जो UI UX बनाना होगा वो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव बनाना होगा। जैसे जब आप टोकन वाली मशीन देखते हो, जब आप कभी किसी कुछ बैंक से, मैंने बैंगलोर में देखा है, आप जाते हो, एक बटन दबाते हो और टोकन बाहर आता है। इट शुड बी दैट सिंपल कि आपने ऐप खोला, आपने बस एक बटन दबाया और टोकन बाहर आ गया। तो मतलब इट शुड बी वेरी वेरी सिंपल कि बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक, और पढ़ा लिखा और ना पढ़ा लिखा, हर टाइप का इंसान यूज, क्योंकि हम देखते हैं कि टिकटॉक आजकल बहुत तरीके के लोग यूज कर रहे हैं। दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर स्टेइंग इन सम रिमोट विलेज, बट उनको काफी हद तक समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका UI UX इतना सिंपल है कि आप 15 सेकंड में बना करके फट से डाल सकते हो। तो UI UX बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इन गेटिंग थिंग्स लाइक दिस आउट। हाँ, आप व्हाट्सएप को देखिए, व्हाट्सएप की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है कि कितना यूजर फ्रेंडली है। करेक्ट, हाँ, सिंपल है। नो मेक सेंस मैन। आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस, और काफी अच्छे इनसाइट्स मिले। थैंक्स शैलेंद्र। और लाइक हम लोग क्या एक फाइनल मतलब क्वेश्चन नहीं है, एक फाइनल बस कंफर्मेशन है कि अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, मैं और कृष्णा। सो वी विल बी डिजाइनिंग इट एंड विल टेक यू थ्रू इट। सो उसके बाद हम 3 स्टेप में ले जाना चाहते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा पायलट, जिसमें हम आपके जैसे लोगों को रीच आउट करेंगे और उनको समझाएंगे कि क्या है ये, और उनको उनसे हम बोलेंगे कि आप फ्री में यूज करो, बस आप हमें फीडबैक दो, मे बी 1 हफ्ता 2 हफ्ता यूज करके, कि आपके लिए सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और फिर हम उस पर इटरेट करेंगे। हम 1-2 इटरेशंस के बाद जब आपको भी लगेगा कि हाँ ये अब सक्सेसफुल लग रही है हमें, और हमें भी लगेगा, उसके बाद हम फिर इस पे डिस्कशन करना चाहेंगे कि अब आप एज अ फाइनेंशियल वेंडर आप टाई अप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके लाइसेंस बना रहे हैं। और जब आप एक बार पेड सेटअप में आते हैं, तो सेकंड विल बी स्मॉल लेवल पेड सेटअप, लाइक ब्रांच लेवल। उस पे हम 1-2 महीना ऑपरेट करेंगे, 1 या 1.5 महीना। अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो फिर हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे ऑफ मूविंग टू पॉलिसी मेकर लेवल, उनको समझाने के लिए कि हम 3 महीने से 4 महीने से हम इसको हमने ट्रायल कर लिया है, जस्ट लाइक अ वैक्सीन इज डेवलप्ड। हम पहले ट्रायल करेंगे, छोटा ट्रायल, बड़ा ट्रायल, और फिर जब फाइनल होगा तो हम उसको लास्ट स्टेज में ले जाएंगे कि अब हम इसको फुली आपका क्लियरेंस चाहिए। तो दिस आर द 3 स्टेप्स। बस मैं आपका एक FYI बताना चाहता था कि हम ऐसे मूव करने का प्लान कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, ये प्लान काम करेगा नहीं करेगा, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, आई गेस ये आइडियल तरीका ही है जाने का, कि हम लोग पहले पहले बेसिस पे देखते हैं, उसमें हम लोग काफी इसको रिप्लेस कर लेते हैं कि ये कमियां हमने जो सोची भी नहीं थी कि आएंगी। जैसे आज की अगर इस डिस्कशन में, अगर 45 मिनट डिस्कशन में हम लोग 3-4 ऐसे पॉइंट मिले जो शायद हम लोगों ने कभी सोचे ही ना हो, और बातों बातों में आए वो। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट में लेना चाहते हैं कि आप लोग ऐप में इसको बनाना चाहते हो, राइट? अभी मतलब ऐप एक तरीका है जो हम सोच रहे हैं, अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है तो हम उसमें भी जा सकते हैं। बस तरीका ये है कि लोगों को खड़ा ना मुझे होना अभी भी लगता है मुझे अभी भी लगता है कि आप जब कोई बंदा पहली बार इसको यूज करे एज ए कंज्यूमर, बिल्कुल बैंकिंग ब्रांच हेड, कृष्णा का दोस्त, नीरज के थ्रू, ऐसा कुछ नहीं, एज ए कंज्यूमर मेरे को किसी ने रैंडम थॉट दिया और मुझे पहली बार बताया, मुझे अभी भी लगता है कि मेरे मोबाइल में अगर कोई लिंक आएगी, मैं उसमें क्लिक करूंगा और वो उसके होम पेज पे जाके जब सिक्योर होगा जो, और मुझे तुरंत टोकन नंबर मिलेगा, वो मेरे लिए इजी रहेगा, रादर मैं फोन में उसको ऐप को इंस्टॉल करूँ, उसमें अपनी प्रोफाइल बनाऊं, और तब मैं अपना ईमेल आईडी या कुछ भी डालूंगी, उसके बाद तो प्रोफाइल आप कह रहे हो कि अपडेट करने के मोबाइल बाद वेबसाइट इज अ फिर गुड मुझे ऑप्शन? मतलब कस्टमर एक बार जब आपसे जुड़ जाएगा तो बिलीव मी, अगर उसको आपकी सर्विस पसंद आई तो वो उसको ऐप को इंस्टॉल करने में उसको सेकंड भी नहीं लगेंगे उसमें जाने में। बट अगर कोई कस्टमर आपको पहली बार उसको अपने आप अपनी बेटर चीज दिखानी कि आपको सर्विस क्यों ले,
तो उसको चूज करने और ना चूज करने में अगर उसको 5 सेकंड मिलते हैं तो वो आपसे जुड़ जाएगा, मतलब जो उसका पहला टच पॉइंट है वो तुरंत हो जाता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल लूंगा एमआई वाले का, वो ऐप पे नहीं गया, मैं उनकी वेबसाइट पे गया और उस टाइम स्लॉट को लेने में मुझे 30 सेकंड लगे। और अभी आज वो कहते हैं कि आप ऐप के थ्रू करना चाहते हो तो भी कैसे मुझे ऐप इंस्टॉल कर लूंगा मैं फॉर श्योर, क्योंकि जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था दैट वाज वंडरफुल। तो अगर आप ऐसा कुछ बनाते हैं कि आप फर्स्ट टाइम जब कस्टमर को क्यू दे रहे हैं वो 30 से 35 सेकंड में उसको मिल गई, तो वो कस्टमर के लिए मतलब आप उसको बेस्ट सर्विस दे रहे हो, विद इन 30 सेकंड आप उसको क्यू नंबर दे देते हो। बट अगर वो ऐप के थ्रू लेगा तो मतलब मुझे भी ऐसा लगता है किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने में, साइन अप करने में कितने भी आप तेज हो 2-3 मिनट तो लगने ही लगने चाहिए, मतलब लग जाते होंगे। नहीं, विल लुक फॉरवर्ड और ये 30 सेकंड और 3 मिनट काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता है अगर आप कोई सर्विस अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं। एक इस पे एक छोटा सा पॉइंट था मेरा, अगर मान लीजिए आपके पास हम एक क्यूआर कोड जनरेट करते हैं जिसके थ्रू मेंबर्स और ज्यादा फास्ट क्यू ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे जो फिजिकल बेस्ट है, तो आप उसको पेस्ट कर लें, प्रिंट करके फैक्स कर दें हम आपको और आप उसको पेस्ट कर लें, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बेस्ट, फिजिकल लेकिन क्या क्यूआर कोड मतलब लिंक के थ्रू जा सकते हैं कि उसके लिए भी ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है? मुझे आइडिया नहीं। क्यूआर कोड रीडर लिंक पे जा सकते हैं, किसी भी लिंक पे मान लो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, कहीं से भी रीड हो सकता है वो, जिससे तुम्हें एक टोकन मिलेगा। स्टिल मतलब क्यूआर कोड रीडर भी अगर उसके फोन में ऐप है तभी तो ना, मतलब ऐसा करना क्या, ऐसा कुछ है कि आजकल कैमरे से हो जाता है, कैमरे को स्कैन करने पे भी हो जाता है। आज तक तो परफेक्ट। अच्छा मतलब अगर कैमरे से मैं ऑन करूंगा अपना बैक कैमरा और तुरंत वो लिंक पे कर देगा, लिंक करता है, लेकिन तो ये तो बेस्ट हो गया। क्यूआर कोड इज लाइक अ लिंक, मतलब जैसे आप वेब पे जाकर के लिंक डालते हो ना, ओके क्यूआर कोड को एक लिंक से ये तो और अच्छा है ना, मुझे मुझे वही तो मैंने कहा कि आप लिंक शेयर कर रहे हो उसको, तो आपने तो लिंक शेयर का इतना इजी मीडियम दे दिया उसको, मुझे तो पता नहीं था कि उस सर्विस केस हो में रही है। पहली टाइम पे कस्टमर को लिंक किया, वो क्यूआर कोड पता कब लगेगा, जो वो ब्रांच में जाएगा तभी ना, वो कहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये भी तो पॉइंट है। एक ऑप्शन दिया ना, मतलब एक उन्होंने सर्विस देने का मतलब लिंक भेजने का ऑप्शन दिया ना नीरज जी ने कि आप क्यूआर कोड के थ्रू भी दे सकते हैं। वेरी लिंक है, आप अगर मतलब बैंक वाला व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है, और अगर व्हाट्सएप पे शेयर नहीं वो खुद आ गया, मान लीजिए ब्रांच में आया, लेट्स छोटे से एग्जांपल लीजिए, वो ब्रांच में आया, खूब लंबी सी भीड़ लगी थी, तो बोला ऐसी भीड़ में 3 घंटे लगेंगे, तेरा कोई बात नहीं, आप क्यूआर कोड पे लीजिए, अपने पर्सनल क्यू बना लीजिए, उस सेकंड से बनाया, अपना कैंटीन चला गया, 1 घंटा घूमा, कुछ और काम कर लिया, उसको टाइम स्लॉट मिल गया, चला आया। आप इस तरह से पहला सोचिए ना एक्सपीरियंस कि मेरे आपने ख्याल से ऑफलाइन, ब्रांच में ही होगा, पहला एक्सपीरियंस जो आप एक होगा ही वो ब्रांच सोचिए में ही कितना कि ऑफलाइन कस्टमर आया, होगा। उसको आपने ऑनलाइन में कन्वर्ट किया। करेक्ट। और होगा भी यही, आप ऑनलाइन कस्टमर कैसे जनरेट नहीं करोगे, ऑनलाइन कस्टमर वही है जो आपके ऑफलाइन कस्टमर है, जो कि कन्वर्ट होंगे ऑनलाइन कस्टमर में। करेक्ट करेक्ट, वो जो अलग से तो कस्टमर बनाएंगे नहीं, कस्टमर तो वही है। मेक सेंस। और आई थिंक इन सब से जैसा जो पॉइंट शैलेंद्र ने मेंशन करा, इससे मुझे ये भी आइडिया आ रहा था कि किसी तरह जो सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म्स है जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, अगर कुछ हम यूटिलाइजेशन ऐसा ढूंढ पाए कि नहीं ये सारी सर्विसेज ओवर व्हाट्सएप अवेलेबल है, तो भी एक अच्छा डायरेक्शन हो सकता है, क्योंकि मैं भी वही सोच रहा था एक्चुअली, क्योंकि उस केस में उसको कुछ भी ऐप नहीं डाउनलोड करनी है, और मे बी अगर हम कुछ एक ऐसा यूजर इंटरफेस देख पाए कि नहीं यार व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको टोकन जनरेट हो जा रहा है, तो मे बी मैनेज करने में भी अच्छा रहेगा बैंक के लिए, क्योंकि सब लोग आज की डेट में व्हाट्सएप पे हैं। और इसके लिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन में एक बार सोचते हैं और फाइनल इस पॉइंट को नोट करते हैं, और इस अगेन शो इट टू शैलेंद्र। कृष्णा, नीरज, मैं मतलब स्टिल मैं बोलूंगा कि जो कि मेरा कंटेक्स्ट यहाँ पे बोलना मेरा लॉजिकल नहीं है, लेकिन स्टिल मैं फील करता हूँ कि इस ऐप की जो सबसे ज्यादा जरूरत है आज की डेट में, एज ए कंज्यूमर ओपन थॉट है मेरी, मतलब ये किसी तरह से ऐसा नहीं कि यही सही होगी, पर मुझे अभी भी लगता है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमको मेडिकल फील्ड में है, जहाँ डॉक्टर क्या वेट कर, करेक्ट। वो वहां पे बहुत जरूरत है, क्योंकि होता क्या है कि आप बैंक की क्यू में, आरटीओ की क्यू में जब वेट करते हैं तो आप उस चीज को झेल सकते हैं, बट लेट से आपको बुखार है और आप डॉक्टर के जाके 1 घंटा वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो जो वेट होता है वो सफर करता है, बट आपको पता है कि आप बुखार झेल ले रहे हो, आप 1 घंटा अपने घर काम कर रहे हो, लेकिन आपको पता है 7 बजे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल गई है और 7:30 7:15 तक देख लेंगे वो, तो आपके लिए वो चीज एक मतलब रिवॉल्यूशन है उस इंडस्ट्री में। और मुझे नहीं पता, हो सकता है वहां पे ऐसी सर्विसेज चल रही हो, आपकी कॉम्प्यूटर ऑलरेडी ऐसा हो वहां पे, बट स्टिल
आप छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डॉक्टर्स के यहाँ ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब हम बैंक में क्यों वेट करते हैं या कहीं और क्यों में वेट करते हैं, तो हम उस चीज को सफर कर सकते हैं। और जब आप डॉक्टर्स क्या वेट करते हैं, तो उस मोमेंट पे कस्टमर्स वो हालत में नहीं होता है वेट करने की, या उसके साथ में जो होते हैं, तो वहां पे ये बहुत अच्छी सर्विस होगी। आप घर में, और उस केस में ना, आप अगर किसी को 2 घंटे का क्यू टाइम देते हैं ना, तो भी सेटिस्फाइड है वो। अब उसको 4 घंटे भी देंगे ना, वो खुश रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि 4 घंटे घर पे आराम कर ले रहा है। करेक्ट आप समझ रहे हो ना, अगर आप बैंक में किसी को क्यू देते हो 6 घंटे बाद की, तो वो आपसे नाराज भी हो सकता है, यार क्या बात है 6 घंटे बाद की दे रहे हैं। बट आप किसी मेडिकल फील्ड में उसको 6 घंटे बाद की क्यों देते हो ना, आप तब भी वो खुश रहेगा कि चलो कितने अच्छे हैं, इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं 6 घंटे बाद, लेकिन वहां पे मैं क्या, तुरंत मेरा काम हो गया। करेक्ट नहीं तो वो आप कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन उस लेवल पे सोचिए। करेक्ट ये मेडिकल और हॉस्पिटल्स ये ऑलरेडी हमारे चार्टर में है, और ऑलरेडी उनको प्लान रखते हुए भी हम लोग का डिजाइन बनेगा। तो दैट इज ए वेरी वैलिड पॉइंट, और वो तो है ही है, वो ऑब्वियस चॉइस है कि आप वो मतलब इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वहां पे तो आपका प्रोडक्ट मतलब आउट ऑफ द वे बहुत ही अच्छा चीज है। नहीं करेक्ट, दैट इज द वैलिड इनपुट। एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, आपने जो एग्जांपल दिया जहां आपने क्यू ज्वाइन किया था, वो लिंक आपने कहाँ से जनरेट किया था? वो आपको एमआई वाला एमआई वाला, हाँ, वो लिंक कहाँ से मिला था आपको? लिंक तो मुझे मतलब पहले मैं एमआई सेंटर पे किसी को मैंने भेजा, तो उन्होंने भेजा, मैंने गूगल पे सिंपली सर्च किया एमआई सर्विस सेंटर, दैट्स इट। आप तो आपने किसी से सेंटर में कांटेक्ट किया, सेंटर वाले ने बोला कि आप वेबसाइट पे जाकर के? मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही अच्छा, नहीं था। मैं किसी को मैंने भेजा कि मुझे मोबाइल सही कराना है, तो मैंने भेज दिया। हाँ, उन्होंने बोला कि आप ऐसे सही नहीं करा सकते हैं, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो फिर बड़ा इरिटेशन सा लगा मुझे, ये कौन सी बात हुई अपॉइंटमेंट ले ये वो। बट जब मैं, आप ये सोचो कि जब आपको किसी ने बोला कि आपको क्यू में खड़ा होने का वर्चुअली, तो स्टार्टिंग में रिलैक्टेंट फील हुआ, बट जब मैंने सर्विस को यूज करने लगा, लेकिन कितनी अच्छी थिंकिंग है। तो मुझे उन्होंने एक लिंक ऑफिशियली तो लिंक लिख के दी थी, लेकिन मैंने गूगल पे सर्च किया, सबसे पहले वही आ गई। अच्छा, तो उन्होंने, आप ऑफिस गए थे या आपने व्हाट्सएप पे बात करी थी, कैसे हुआ था? आप ऑफिस गए थे? मैंने किसी को भेजा था ऑफिस। ओके ओके ओके, ठीक है आप तो मान लीजिए मैं खुद ही गया था, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, आपको सर अपार्टमेंट लेना और उन्होंने आपको लिख करके वेबसाइट का नाम दे दिया, और वो वहां से जा करके उन्होंने लिंक करा लिया। समझ गया, समझ गया, ठीक है। इस मोड पे है। बट डिजाइन उतना बड़ा टास्क नहीं था, अगर मैं उसको ऑनलाइन भी सर्च करता तो सेकंड्स का ऑप्शन था। करेक्ट तो हम भी ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं जिसमें आइदर थ्रू व्हाट्सएप और वेब पे आप अगर सर्च करते हो कि भाई मेरे को इस टीम में लगना है, तो आपको ऑलरेडी एक लिंक ऐसा मिल गया जिसके थ्रू आप जाके लग सकते हो, और ये हमारी वेबसाइट में भी वो इतनी इजी थी, वो इतनी इजी थी कि मुझे को टफ नहीं लगा। करेक्ट बिल्कुल इजीली हो गया। हाँ, करेक्ट क्योंकि मैं भी उतना टेक सेवी नहीं हूँ, मेरे को टाइम लग सकता था, बट वो बड़ा इजी था। चलेगा गॉट इट, ठीक है। yeah so I think नीरज any more questions? नहीं, बस यही है अभी। अब हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद एक नेक्स्ट राउंड करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द पायलट। करेक्ट so Shailin, thanks a lot, or we'll whatever we are designing, we'll definitely have a review with you कि कैसा वो लग रहा है। और for making a generic design, definitely we need to understand other verticals also, medical field हो गया, और मान लो कि और भी हमें गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, या मान लो रेस्टोरेंट्स हो गए, ग्रोसरी स्टोर्स हो गए। तो we'll see कि what best will fit to all, okay, और फिर एक बार रिव्यू कराता हूँ, ठीक है। Thanks a lot. Thanks for joining. Thanks Neeraj. Thanks Shailin. Bye bye. Thank you. Bye bye. Okay, thanks, bye.